Hello and welcome back to this channel. Dear students, this topic is three-phase inverter. From the exam point of view, you may expect the question like this. Draw the star-connected three-phase inverter and explain its operation for 120 degree along with the suitable waveform. There are two modes of operation. One is 120 degree and another is 180 degree mode of operation. Both the modes are almost similar apart from slight differences. Presently, we are talking about 120 degree mode of operation. This is the circuit diagram. As shown in this diagram, T1, T2, T3, T4, T5 and T6. 6 IGBTs are used. One can well use SCR or MOSFET. Any switching device, any switching power device is required. So I have shown IGBTs. If the question is related to MOSFET, you will have to just replace the diagram, replace the IGBT by MOSFET. That will be the only change. This is the star connection. So 3 points are shown, X, Y and Z. For the reference, again here I have marked 3 points, X, Y and Z. Now, do remember like this. This is 120 degree mode of operation. So, each SCR will be conducting for 120 degrees. I am going to explain all these waveforms. Presently, each SCR is going to conduct for 120 degree and every SCR will be fired after 60 degree. In the sequence, SCR means IGBT in this case. If you are using SCR, you will have to write the explanation related to SCR. So, each IGBT, each device will be fired after 60 degree. That means to start with, SCR1 will be fired at 60 degree, SCR2 will be fired at 120 degree and so on. And it will be in the proper sequence like 1, 2, 3, 4, 5, 6. If it is SCR, the sequence is same. If it is IGBT, MOSFET, again the sequence is same. So this is the corresponding circuit diagram. During the first interval, there are different intervals. So I have divided the intervals into 6 parts. Interval number 1 to interval number 6. During the first interval, IGBT, or if you are using SCR, whatever, in this case IGBT T1 and T6 will be conducting. ये जो red ink से मैंने दिखाया है, these two IGBTs will be in conduction. Now this connection X is connected to X point of this star connection. This connection Y is again similarly connected to Y point of this star connection. So जैसे मैंने बताया, during the first interval, total there are 6 intervals. During the first interval, IGBT T1 and T6 will be connected. So let me first draw the simplified diagram, then this explanation will be more clear to you. जैसे मैंने बताया, during the first interval, IGBT 1 and 6 will be in conduction. So this is the simplified diagram which shows, जैसे देखो ये IGBT है, this will be switched on. That means it is acting as a closed switch. तो यहाँ पे closed switch हो जाएगा. It is directly connected to Vs. So this IGBT is directly connected to Vs. मतलब यहाँ पे close. This is acting as a closed switch which I have not shown. And this is resistance R. This resistance R will be in picture. Then look at this negative connection. It is connected to T6. Every terminal, every IGBT is connected to this like this. बॉटम IGBT I am talking about. तो ये नेगेटिव VS यहाँ पे कनेक्टेड है एंड दिस टर्मिनल जहाँ पे मैंने Y लिखा है, ये दिस इज अगेन कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस R. तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है एंड दिस रेजिस्टेंस इज अगेन कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ VS. मेक इट मोर सिंपल. जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स दिखाए X, Y, Z, these are for reference purposes. Actually, it is the star connection. That means the terminology is we have to make use of R, Y and B. So जो red ink से यहाँ पे मैंने लिखा है, this is R, this is Y, this is B terminal. Now this is the neutral terminal which is present between these two resistance. यहाँ पे एक resistance है which is connected to point B. ये याद रखना है, R by B. This is the neutral connection. This is the supply Vs. So symmetrical distribution, every resistance is equal. So symmetrical distribution takes place. That means supply Vs by 2 will be available across this R. I'm talking about upper R, upper resistance. So this across this resistance, voltage drop from this R terminal, ये R, Y, B अलग है. This R represents value of resistance. So voltage drop between this R and N
is Vs by 2 because half of the voltage will be applicable. Then voltage drop between this Y and N, यहाँ पे देखो ये negative connection है, so this will be minus Vs by 2, whereas this point B is open circuited, so VBN is equals to 0. This is the simplest way to remember these conventions. Make it more simple. Exam point of view से सिर्फ आप इतना याद रखोगे तो भी चलता है. This diagram is not required, but this is the main diagram which is required. Now most important part, how to draw these waveforms. ये बहुत लॉजिकल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुन लो. फर्स्ट आई नीड टू प्रिपेयर अ टेबल. ये टेबल आप लोगों को बिल्कुल मगअप नहीं करना है. जैसे मैंने एक सिंप्लीफाइड, इससे पहले सिंप्लीफाइड डायग्राम में बताया कि देर आर 6 इंटरवल्स. टोटल हम लोगों को 0 to 360 कवर करना है. देर आर 6 इंटरवल्स. एवरी इंटरवल इज ऑफ 60 डिग्री. तो पहला इंटरवल लिखा है 0 to 60 डिग्री, सेकंड 60 to 120, थर्ड 120 to 180, फोर्थ 180 to 240, फिफ्थ 240 to 300, सिक्स 300 to 360. ये अलग अलग इंटरवल्स है. 1 to 6. देर आर 6 इंटरवल्स. व्हाट आई सेड इन सिंप्लीफाइड डायग्राम्स, ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरवल मतलब 0 to 60 डिग्री, IGBTs 1 and 6 आर कंडक्टिंग. तो ये पेयर लिख के रखना है. सो 1 6 ये सिर्फ आप लोगों को याद रखना है, ये कॉलम, क्योंकि मैंने सिर्फ पहले पार्ट का एक्सप्लेन किया है. सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल फॉर एवरी पार्ट. सो ये सिर्फ आप लोगों को याद रखना है. ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरवल 1 and 6 विल बी कंडक्टिंग. ड्यूरिंग सेकंड दैट इज 60 to 120 डिग्री 1 and 2 विल बी कंडक्टिंग. नेक्स्ट 2 3, नेक्स्ट 3 4, next 4 5, and in the last interval number 6, IGBTs 5 and 6 will be conducting. अब ये वैल्यूज कैसे याद रखना है. अभी मैंने एक एक्सप्लेन किया था फॉर 1 and 6 फॉर वन इंटरवल. I mean for first interval 0 to 360 degree, this VRN was Vs by 2, VYN was minus Vs by 2. Just now I explained the same analogy, same logic is applicable for all these things. तो ये वैल्यूज मैंने डायरेक्टली पहले पार्ट का एक्सप्लेन किया है. सो फॉर रिमेनिंग पार्ट्स आई हैव रिटर्न दीज वैल्यूज डायरेक्टली. जैसे देखो ये Vs by 2, ये माइनस Vs by 2, ये मैंने एक्सप्लेन किया सर्किट डायग्राम से रिलेटेड. VBN इज 0 बिकॉज इट वॉज ओपन सर्किटेड. नेक्स्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट इंटरवल दिस वैल्यू विल बी Vs by 2, 0 माइनस Vs by 2 एंड सो ऑन. अब ये वैल्यूज आप लोगों को मगअप नहीं करना है. ये वैल्यूज कैसे जनरेट करना दैट आई विल टेल यू. जैसे ये वैल्यूज लिखा है, दीज आर द फेज वैल्यूज. सो VRN, N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल, RYB 3 पॉइंट्स है. सो वोल्टेज, दिस इज द फेज वोल्टेज. यू कैन वेल डिनोटेड बाय VRPH, मतलब फेज वोल्टेज. सो इट इज द फेज वोल्टेज रिलेटेड टू R टर्मिनल. सो VRN, VYN, VBN. जैसे मैंने ये पहले पार्ट का एक्सप्लेन किया, सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल फॉर ऑल पार्ट्स. एग्जाम में ये डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं. इफ यू जस्ट रिमेंबर दिस पार्ट यू कैन वेल कैलकुलेट द रिमेनिंग वैल्यूज इन ऑफ द टेबल. और एक बार टेबल बनाए तो ये डायग्राम बनाना बहुत सिंपल है. अब ये जैसे मैंने बताया ये वैल्यूज है रिलेटेड टू फेज वोल्टेज. लाइन वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करना है. फर्स्ट कैलकुलेशन VRY, दिस इज सिंपली VR माइनस VY. तो यहां पे देखो ये वैल्यू, इट इज VR माइनस VY. VR का वैल्यू है Vs by 2 माइनस ऑफ VY का वैल्यू है माइनस Vs by 2. माइनस माइनस बिकम प्लस, सो दिस वैल्यू इज Vs. तो यहाँ पे वैल्यू Vs लिखा है. और एक वैल्यू डिस्कस करते हैं, ये VYB कैसे लिखेंगे. VYB इट इज VY दैट इज VYN माइनस VBN. इसमें देखो VYN का वैल्यू है माइनस Vs by 2, माइनस VBN का वैल्यू है 0. सो दिस आंसर इज माइनस Vs by 2. तो यहाँ पे लिखा माइनस Vs by 2. लाइकवाइज VBR इज बेसिकली सेम लॉजिक. VBR इज VB minus VR. So VB, value of VB is 0 minus VR. VR means VRN, that is Vs by 2. So answer is minus Vs by 2. Likewise हर एक के लिए ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला रिमेन्स सेम. हर एक के लिए कैलकुलेशन करके ये वैल्यूज लिखा है. सो दिस इज द वे हाउ टू प्रोड्यूस द टेबल. एक बार टेबल कंप्लीट करने के बाद दिस वेवफॉर्म इज प्रीटी सिंपल. अब ये वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ करना है. लुक एट दिस डायग्राम. पहला पार्ट है VRN, मतलब ये जो पहला पार्ट है, these 3 points, these are the phase voltages. पहला है VRN. अब देखो सिक्वेंशियली याद रखना है.
VRN मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, इसका पहला वैल्यू देखो VS/2 है। तो यहाँ पे ये जहां पे मैंने नोटेशंस लिखा है, दिस नोटेशन आई विल राइट इट वन सेकेंड, VRN, यहाँ पे जीरो लाइन है, रेफरेंस लाइन है, ऐसा कंसिडर करना है। पहला वैल्यू है VS/2, ये वैल्यू दिस वैल्यू यहाँ पे मैं लिखता हूँ VS/2। देखो ये जीरो का वैल्यू ऐसा सोचना है, जहां पे मैंने नोटेशंस लिख रहा है वो रेफरेंस है अपर पार्ट VS/2, क्योंकि पहला वैल्यू VS/2, ये कॉलम वाइज रीड करना है, ये चीज याद रख लो। फर्स्ट VS/2, सेकंड इंटरवल। अब देखो यहाँ पे मैंने इंटरवल नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6, एवरी इंटरवल इज फॉर 60 डिग्री। तो फर्स्ट इंटरवल 0 to 60 डिग्री में इसका वैल्यू VRN का वैल्यू है VS/2, तो यहाँ पे ये लेवल आएगा VS/2 यहां तक। उसके बाद कॉलम वाइज रीड करना है। नेक्स्ट इंटरवल देखो 60 to 120, फिर से वैल्यू है VS/2, तो 60 to 120 मतलब सेकंड इंटरवल, यहाँ पे फिर से VS/2 आ गया। फिर देखो थर्ड इंटरवल जीरो है, थर्ड इंटरवल मतलब ये जीरो है, तो ये जीरो का लाइन है, ये जीरो आ गया वैल्यू। नेक्स्ट -VS/2 मतलब नीचे ड्रॉ किया, -VS/2 फोर्थ इंटरवल में। फिफ्थ में देखो फिर से -VS/2, फिर से -VS/2। सिक्स्थ इंटरवल में जीरो है, तो ये जीरो। फिर से फर्स्ट इंटरवल स्टार्ट होगा, फर्स्ट इंटरवल का वैल्यू है VS/2, तो यहाँ पे VS/2 आ गया। ये हो गया डायग्राम VRN का। लाइकवाइज ये VYN का डायग्राम है, VYN। फिर से जहां पे नोटेशन लिखा है, मतलब यहाँ पे ये लाइन, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू जीरो लाइन, ये भी जीरो लाइन है। अब VYN फिर से कॉलम वाइज देखना है। पहला वैल्यू पहले इंटरवल में -VS/2, तो ये जीरो का लाइन है, रेफरेंस लाइन। ये VYN का वेवफॉर्म है, -VS/2 मतलब ये वैल्यू जो है दिस इज -VS/2। नेक्स्ट वैल्यू देखो जीरो है, तो नेक्स्ट इंटरवल में जीरो आ गया। थर्ड VS/2, तो ये VS/2 आ गया। फोर्थ VS/2, ये VS/2 आ गया। फिफ्थ जीरो, ये जीरो का लाइन है। सिक्स इंटरवल -VS/2 एंड सो ऑन। लाइकवाइज VBN का भी बनाना है। VBN का ये रेफरेंस लाइन है, VBN के वैल्यूज देखो, पहला जीरो है, ये रेफरेंस लाइन है, तो पहला जीरो आ गया। नेक्स्ट -VS/2, ये -VS/2 का लेवल है। फिर -VS/2, फिर से नेक्स्ट इंटरवल -VS/2, फिर जीरो है, तो ये जीरो आ गया। फिर VS/2 मतलब यहां से यहां तक VS/2, फिर से VS/2 एंड सो ऑन। ये हो गया फेज वोल्टेज का वेवफॉर्म। अब लाइन वोल्टेज का ये जो पार्ट है, ये लाइन वोल्टेज का है। यहाँ पे VRY, जहां पे मैंने नोटेशन लिखा है वो रेफरेंस लाइन मतलब जीरो का लाइन है, ऐसा एज्यूम करना है, तो यहाँ पे मैं जीरो लिखता हूं, ये जीरो का लाइन है। अब देखो इसमें पहला वेवफॉर्म है VRY, लुक एट द वैल्यूज। पहला वैल्यू है VS, तो पहला इंटरवल ये 0 to 60 डिग्री, ये पहला वैल्यू है VS, तो यहाँ पे ये वैल्यू VS आ गया। ये रेफरेंस लाइन है, ये वाला, ये VRY का है। फिर कॉलम वाइज रीड करना है। नेक्स्ट वैल्यू इज VS/2, नेक्स्ट इंटरवल में ये VS/2 आ रहा है, ये ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन से। नेक्स्ट वैल्यू इज -VS/2, कॉलम वाइज रीड कर रहे हैं हम लोग। -VS/2 मतलब ये लेवल, फिर से स्ट्रेट लाइन से जो ज्वाइन कर रहा है। फिर -VS मतलब ये, यहाँ पे मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ -VS, दिस इज -VS/2, ये आ गया VS/2, ये लेवल है VS, यहाँ पे लिखा है VS। फिर -VS/2, फिर से -VS/2, नेक्स्ट इंटरवल VS/2, यहां से यहां तक VS/2, और फिर से फर्स्ट इंटरवल स्टार्ट होगा तो VS आ जाएगा। दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ VRY। लाइकवाइज VYB एंड VBR, सेम लॉजिक। VYB का ये वैल्यूज है, VBR का ये वैल्यूज है, सो दीज आर द करस्पॉन्डिंग वेवफॉर्म्स। दिस इज द वे हाउ टू ड्रॉ द वेवफॉर्म्स फ्रॉम बाय रेफरिंग द टेबल। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। जो लास्ट का सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ किया था दैट इज ऑप्शनल, और ये वैल्यूज याद रखना है। इफ यू जस्ट रिमेंबर दिस वैल्यूज यू कैन, आई मीन एक्चुअली दीज आर लॉजिकल, जैसे मैंने पहले पार्ट का एक्सप्लेन किया ये वैल्यूज कैसे आए हैं। लाइकवाइज फॉर एवरीथिंग, एवरी इंटरवल यू कैन कैलकुलेट, बट is like by making equations and prepare the table you can draw the corresponding फॉर्म्स। ये 120 डिग्री मोड के लिए है। 180 डिग्री के लिए, जैसे 120 के टू डिवाइसेस, टू IGBTs, टू MOSFETs और टू SCRs will be connected in case of 180 डिग्री
devices will be conducting at a time. That will be the only difference. The basic circuit diagram जो इससे पहले का बनाया था मैंने, that remains as it is. Only difference is that 3 devices will be conducting. Accordingly, the table will be changed and waveforms will be changed. So dear students, that's it for today's session. So thank you. Thanks a lot for watching this video.